All right, so who do we have? Oh, the twin brothers on the same cam. How are things? Good, good. चलो ठीक है, I would request you to just see me. आप लोग अपना webcam off कर लो because the bandwidth gets reduced and अपने बीच में अगर आपको बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार अपने घर में बोल के रखना अपने छोटे भाई बहन मॉम डैड को कि थोड़ा कम यूट्यूब बफर करें, थोड़ा कम टॉरेंट बफर करें ताकि तुम्हें एडिक्वेट बैंडविड्थ मिल पाए. So we'll wait for some time before we start the lecture. I'll just ask everyone to join in. I'll wait for that time. Now, till that time, I'll just quickly share the screen and go through some couple of pointers on how things are going to happen. All right, so this is the screen. I'll turn off the webcam from my side. All right. So the way in which I am going to proceed with the lectures is that I'm going to use this screen sharing feature and I am going to write on that screen using a pen which then you can read. ठीक है, ऑडियो मेरा आपका आता रहेगा. Now one of the slight difference from what you would have done in your previous class in this is that जब ये स्क्रीन मैं आपके सामने शेयर करूंगा ना तब क्या होता है कि ये स्क्रीन और ये ऐप फोरग्राउंड में आ जाता है, जूम बैकग्राउंड में चला जाता है. तो जूम बैकग्राउंड में जाने की वजह से अगर आप कुछ चैट पे लिखोगे तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आएगा. ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू गेट दैट notification and I might miss sometimes a doubt asked over there. So what I will recommend is कि आप लोग स्टार्टिंग में सब अपने आप को म्यूट करके रखो and once you do that और उसके बाद में कुछ डाउट वगैरह आएगा तो अनम्यूट करो, पूछो क्वेश्चन and then go back on mute. We are civilized enough to understand this and execute it. कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Someone unmuted themselves. All right. Okay, so we have 37 participants with us. I'll just wait a couple of more minutes for everyone or all the other students to also join in. All right, so we have a good number of participants with us and we can begin
अभिजय, रोहन एंड तनुष, ये तीन आए हैं. Let me find out. Abhijay is not here. Rohan and Tarush. All right. Okay, so let's start the session. Now, as you can see, there are these some basic guidelines which I would ask you to like follow while we are going through this time. I hope everyone is safe and sound, and this time is something which you are going to be is going to be very crucial for you to utilize in the best possible manner. So given this context, हम लोग आगे जिस भी तरीके से प्रोसीड करेंगे इन ब्रॉड गाइडलाइंस को साथ में लेकर चलेंगे. आपको स्टेप ऐप पे गेम खेलना है, लेक्चर्स देखने हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड देन लाइव लेक्चर्स में हमारे साथ में डिस्कशंस करने हैं. But then there are certain finer things about it which I would want to go through in a detailed manner. Now the step app game is something which is very important for you to play because it is something which is being monitored. The dashboard is something which comes as a update as to how much each and every one of you has played, how many islands, how much time you have spent, वो भी capture होता है in fact उस पे. So like please do play the game before the lectures are there. Now see, the game might look like to you quite simple in the first place, मतलब उसमें कुछ खास है नहीं, but उसका इंटेंट भी बेसिक्स कवर करना ही है. तो अगर आप लोग वो ऐप खेलोगे एंड उसमें नोटिस करोगे तो एक चैप्टर को ऐसे सब टॉपिक्स के बीच में डिवाइड करके उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट और उसमें बहुत सिंपल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस टाइप का ही उसमें गेम प्ले है. तो इट इज समथिंग व्हिच ट्राइज टू गेट बेसिक्स आउट ऑफ यू. अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर तो आपने क्योंकि पढ़ लिया था तो उसका गेम खेलने में आपको कुछ खास टाइम नहीं लगा होगा. बट अगर आप जैसे कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या आगे किसी चैप्टर का गेम खेलोगे जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. यू विल हैव टू रीड द स्लाइड, अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. Having said that, it will be something which you will be able to definitely do. Now let me come to the second point, how we have to proceed in terms of completing our syllabus. तो अभी तो अगेन केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों के साथ में लेक्चर्स काफी टाइम पहले शेयर हो गए थे एंड बीच में वी डिडंट हैव एनी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन अस, सो वी कुडंट ब्रेक इट into small chunks and do it and have regular interactions in between. तो अभी उस केस में तो क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके लिए रेडी है. ठीक है, वैसे तो उन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डाउट कवर हो रहे थे तो दोस डाउट्स आर आल्सो समथिंग व्हिच हैव बीन टू सम स्मॉल एक्सटेंट टेकन केयर ऑफ, बट हम लोग अभी यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. बट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड ऑल वो वहाँ पर काफी हद तक कंप्लीट हो गया था. तो अभी उस केस में आपको लेक्चर्स सारे कंप्लीट करके इस संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है. ठीक है, संडे का टेस्ट इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट. मतलब अगर आपने एफबीओ एफबीएस भी अच्छे से कर लिया है बुकलेट का, then you are more than enough prepared for the test which is there on Sunday. So don't worry about it. Now from the point of view of future chapters, मतलब अगर आपके सामने कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो आप लोग नहीं पढ़े जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ऑल, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें एक स्मॉल प्लान बाय प्लान आगे मूव करेंगे, स्मॉल स्टेप बाय स्टेप. इनफैक्ट थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे उसमें दैट कुछ वीडियो लेक्चर्स जो मैं आपको गाइड कर दूं कि ये वीडियो लेक्चर्स आप पहले देखना
एंड फिर उसके बाद हम लोग एक सेशन लेंगे एंड उसमें मैंने जितना पर्टिकुलर होमवर्क आपको दिया है आप उतना ही करना. डोंट रश थ्रू थिंग्स, डोंट ट्राई टू डू ऑल टॉपिक्स एट वंस, एवरीथिंग टू बी कवर्ड, मतलब इन अ गाइडेड मैनर जैसे हम आपको बताएंगे. एंड ये जो चैप्टर वाइज गूगल फॉर्म है इसको डेफिनेटली अपडेट करना. इट इज समथिंग विच विल गिव यू एंड योर पेरेंट्स as well as us teachers a visibility as to how the progress is. Okay, because we can't like interact on a regular basis in a live manner, so this is the best thing that we have to keep things like in a structured manner. अच्छा, देन डाउट्स के लिए अच्छा वन मोर थिंग, यू नो ये जो फॉर्म है इसको आप एक दिन पहले ही भर लो जिस दिन लेक्चर होने वाला है उसके लाइव लेक्चर के पहले, ठीक है, ताकि चीजें अपडेटेड रहे. अच्छा, देन मैंने बैच वाइज ये ऑनलाइन स्प्रेडशीट शेयर करी है टू डिस्कस द डाउट्स. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज डाउट्स, तो उसमें ये चीज नोटिस करना दैट अभी तो कैसा है, वी आर अनोनिमस. तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अनोनिमस, आप लोग बड़े आराम से मतलब भर भर के डाउट डाल रहे हो. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज एन एडवांटेज है, क्योंकि अब मुझे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का, थोड़ी सी बेइज्जती करने का वो सब मौका नहीं मिल रहा है. तो एज अ रिजल्ट आई एम नॉट एबल टू you know, in fact you are able to very freely put in loads and loads of doubt on the sheet. Now this kind of reduces the effectiveness of live class. ठीक है, तो अच्छा ऑल्सो आप, मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग अभी भी बैठ के बीच में डाउट्स अपडेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट, जो लेट लतीफ है. ठीक है, थोड़ा सा टाइमली मैनर में क्लास के सिग्निफिकेंट टाइम के पहले, मतलब अगेन 12 बजे के पहले करो या फिर एक दिन पहले करके खत्म करो. ठीक है, डोंट रश टुवर्ड्स द लास्ट टाइम. अब इसमें भी ऐसा है दैट प्लीज अंडरस्टैंड दैट पूरा का पूरा लेक्चर, लाइक कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग एक एक बैठ के डाउट नहीं डिस्कस कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं रहेगा. अभी आप खुद नोटिस करोगे द स्पीड एट विच वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सो द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिफिकल्ट एंड द ट्रिकी क्वेश्चंस. ठीक है, आज मैंने वो सॉर्टिंग नहीं करी है बिकॉज आज पहला सेशन है. हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है. हर टीचर का कुछ एक अलग अलग स्टाइल रहेगा जिस तरीके से आपको बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे. तो लेट्स गेट अकस्टम टू इट इन द फर्स्ट गो. वी हैव यू नो गुड टाइम फ्रेम विद अस जहां पर हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे. सो द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिफिकल्ट एंड द ट्रिकी क्वेश्चंस. एंड जो इजी क्वेश्चंस रहेगा उनका मैं आपको रिकॉर्डेड कंटेंट शेयर करके भेज दूंगा. मतलब इट विल बी either the written solutions or you know, written solution plus videos in case there are some things to be added in those questions. ठीक है, otherwise as I said that such live sessions that we have are reserved for conceptual doubts as well as any difficult and tricky questions that you might come across on a case by case basis. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेरा डिस्क्रेशन रहेगा. मैन आई विल बी, आप लोग अपने डाउट्स डाल दो, बट उसके बाद में मैं इसमें अपनी तरह से कुछ पॉइंट्स ऐड कर दूंगा. अच्छा, वन मोर थिंग व्हाइल एडिंग द डाउट्स इन द एक्सेल शीट, एक तो जैसे मैंने आपको बोला बिफोर टाइम ऐड करो, एंड सेकेंडली ऑल्सो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, पुट द क्वेश्चंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब आप लोग जब खुद क्वेश्चंस डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस रैंडमली एक के बाद एक डालते जा रहे हो आगे. ठीक है, उसमें मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मतलब देख लो ना आपका क्वेश्चन कहाँ पे फिट हो रहा है, ताकि मेरे लिए रीड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज आई विल हैव टू लाइक गो बैक एंड फोर्थ एंड इट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अगेन. ठीक है, दैट इज वन रिक्वेस्ट. And another request would be, or another something which I kind of discovered today is कि क्या होता है कि एक्सेल के स्प्रेडशीट में ना एक सेल के अंदर कैरेक्टर लिमिट रहता है. तो अगर आपने भर भर के उसमें क्वेश्चन डाल दिए एक ही सेल के अंदर, तो फिर वो और लेगा ही नहीं. मतलब आप फिर या तो अगले रो में चल जाओ, अगले कॉलम में चल जाओ, अगले सेल में चले जाओ. ठीक है, एक ही सेल की कैरेक्टर लिमिट एग्जॉस्ट हो गई तो. ठीक है, so having said this, does anyone want to say something or add something to this?
Okay, now what we have, how do I join the group? As in the Excel group, sorry WhatsApp group. तो उसमें तो आप मुझे भेज दो भाई, मतलब लिंक उसका शेयर किया हुआ है मैंने सबके साथ में. सो वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप. हाउ कम आर यू लेट? मतलब 3-4 दिन पहले क्रिएट हो गया था वो ग्रुप. हाँ बोलो, समथिंग, समवन समथिंग टू से. Okay, one more thing. Uh, yeah, I have not turned on my video. I have only switched on the screen sharing. So you will be able to see the screen. That way the internet bandwidth, where can we share our doubts? Are you share your doubts on that Excel spreadsheet na, that I had shared? FBO, FBS, wo sala. Okay. So one more thing about the chat option. Um, See, I understand this chat option is something which is there for everyone to, you know, have a discussion and all, but I would request you guys to not use the chat option for general chit chat, because कैसा होता है कि that for students who are viewing over the mobile, uh, the thing is that this comes as kind of a distraction, because in that case what happens is that उनके स्क्रीन पे पॉपअप होता है चैट. तो अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इन दैट केस दे आर गोइंग टू बी सीइंग दोस चैट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है. सो डोंट डू द प्राइवेट चैट्स, डोंट डू द these kind of chats as well. And also one thing, matlab you might want to chat privately or something, but please understand all of this gets logged. Anything and everything you write over the Zoom chat group, it is something which is going to get recorded. And even if you are chatting privately, तो वो log में पूरा आएगा मेरे पास. So I would request you not to indulge into all this nonsense. Keep things simple, keep things focused. Just have discussions which are relevant. Otherwise, if you like kind of want me, I can also switch the chat off. But उसमें होगा क्या कि that sometimes the constructive discussion might also go away. One more thing that I again wanted to say कि ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है ना जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये फोरग्राउंड में आ जाता है. तो जूम क्या है, बैकग्राउंड में चला जाता है. तो अगर आप चैट पे कुछ लिखोगे ना तो मुझे पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आएगा. I might not be able to even get the notification and understand अगर किसी को कुछ पूछना था तो बीच में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, तो आई एम मोर देन हैप्पी to discuss it right away. You can unmute yourself, ask that question, and then go back to mute. So it will be like a good two-way communication between like both the parties. Chat पे थोड़ा सा मिस होने के चांस ज़्यादा रहेंगे. ठीक है. All right. So I hope these things are clear. Now, anyone has any doubt in particular, want to ask, can unmute themselves and ask me right away. All right, I'll take that as a no. Everything is good to go. So let's move on to our doubt session. Now, अभी के लिए मैं FBO पर focus कर लेता हूँ, because a lot of you have sent queries from FBO, and एक एक करके जाएंगे, but थोड़ा सा quickly जाएंगे. ठीक है. Will not spend a lot of time into
each and every question, move things fast. All right. So question number 4 किसी ने डाला है FBO का as a first as a doubt in the entire section. So see fourth question ना थोड़ा सा गड़बड़ है. The fourth question, it kind of lacks information. उसमें guys please go on mute. उसमें you will have to like understand कि you know that rate is dependent on concentration of H plus raised to the power of 1 is not mentioned. ठीक है ये दिया ही नहीं है. So like how it is going to change with concentration. तो उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या यूज कर लिया है कि stronger acid implies more H plus implies more rate. ये कॉन्सेप्ट यूज करके उसमें आंसर करने की कोशिश करी है, बट थोड़ा सा अच्छे से वर्ड कर दे तो बेटर रहता. अभी वो इनकम्प्लीट सा है क्वेश्चन. ठीक है. देन आई थिंक समवन हैड आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 12. सी इसमें ना जो कैच है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/2 dA by dt. ठीक है. कोफिशिएंट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. सो यहाँ पर -1/2 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द टाइम टेकन 10 मिनट्स. ये आपका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है. Then question number 15th is also something that someone has asked. See बीच में कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो बता देना बिकॉज एज आई सेड आप लोगों ने ऐसा सेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है तो मुझे ऐसे फिश आउट करना पड़ रहा है which kind of sometimes misses the questions. Now 15th question में it's about counting the dots. मतलब R is given as K A raised to the power of 1 and B raised to the power of 1 दोनों फर्स्ट ऑर्डर है. अब एक केस में A के डॉट्स 3 है और B के भी डॉट्स 3 है. ठीक है. और दूसरे केस में A के डॉट्स 3 है एंड B के डॉट्स 6 हो गए. You just divide, get the answer. Then चलो I am proceeding in this manner. Yeah, 33. मतलब I'm going jumbled up because it's really a pain to like sort it if it is in this manner. 33rd question. 33rd question में 90% होने में see 90% completion implies 80 is 10% of A. इतना ही बचा हुआ है A नॉट. ठीक है. तो ln A नॉट अपॉन 10/100 A नॉट. ठीक है. This is something which is equal to 0.1 A नॉट is equal to K into 90. तो इससे आपको K मिल जाएगा. And 50% completion is something that you can very well write.
ln 2 by k हो जाएगा, ठीक है। देन 39th क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन में 39 थोड़ा सा गड़बड़ है, इन द सेंस उसमें बोला नहीं है कि एलिमेंट्री है, ठीक है, नॉट मेंशन्ड in the question that the reaction is elementary, ठीक है। अदरवाइज फिर आपका बी एंड सी दोनों करेक्ट होता। अभी ओनली सी इज समथिंग विच इज व्हाट यू कैन से, ठीक है। 40, now this is something which is straightforward, first order, ठीक है। एंड गिवन है आपको ये दैट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो लॉन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो बस अभी यू विल गेट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ई व्हेन टी इज इक्वल टू 1 बाय के, ठीक है। Then someone asked 19th question as well. 19th में वापस से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, सब कुछ दिया हुआ है वहां पर, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। It is first order with respect to A and second order with respect to B. If 1 mole each of A and B introduced in 1 liter vessel, the initial rate was this. Now what will be the rate when the reactants, half of the reactants turned into products? So R is equal to K into 1 raised to the power of 1 and 1 raised to the power of 2, एंड टी टाइम पर ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, इनको डिवाइड कर लो, के तो चेंज होगा नहीं, के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बस आपका आंसर आ जाएगा। देन 21st क्वेश्चन, A plus 2B product is given by this, तो A लार्ज एक्सेस में हो गया ना, तो उसको मर्ज कर देंगे, R इज इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू बी। अगर ऐसा है तो अब इसको बोला जा रहा है लार्ज एक्सेस में, लार्ज एक्सेस मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो यू मर्ज इट विद के, ठीक है। ये कैसा है इसको एक बार समझने की कोशिश करना, मतलब मैं थोड़ा सा डेटा लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटा किस तरीके से रहेगा, दैट मान लो ये भी ए 100 है और बी 1 है, ठीक है, क्योंकि ये ए लार्ज एक्सेस में है। अब मान लो ये आधा कंज्यूम हो जाता है, ये 0.5 कंज्यूम हो जाता है, तो ये कितना बचेगा 99.75, ठीक है। तो अगर अब आप रेट का एक्सप्रेशन देखो, तो जो रेट के एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा, which term is influencing the rate most, बताओ। आ रहे हैं ओम, उस पे भी आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आएंगे, वो अगर आगे लिखा हुआ है तो अब आगे आ जाएगा।
क्योंकि मैंने अब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रही है पूरी स्क्रीन? यू गाइस, एज आई सेड, चैट में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी क्वेरी दैट यू हैव। ठीक है, सो अर्नब ने बोला बी। तो एज यू कैन सी, बिकॉज बी तो क्या आधा हो रहा है, इसीलिए उसकी वजह से रेट पे काफी फर्क पड़ेगा, एंड ए हार्डली कुछ हो रहा है। So that is why we say that the concentration of A is almost constant and you can merge it with K. This is why now you can call it as pseudo first order. ठीक है, Sir, the answer is given C2. 21 का नहीं, नहीं, it should be 1 only. Okay, sir. ठीक है, then 25th question में 25th क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि R is equal to K A raised to the power of N, ठीक है, या A raised to the power of X बोल देते हैं, X ऑर्डर है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, और इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाड्रुपल्ड। अभी स्पेलिंग पता नहीं क्या होती क्वाड्रुपल्ड की, बट कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाड्रुपल्ड, रेट इज डबल्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज हाफ, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आपने nth ऑर्डर का डेरिवेशन तो करा ही था, that 1 upon at raised to the power of n minus 1 minus 1 upon a naught raised to the power of n minus 1 is equal to n minus 1 kt. बट अब इसमें बस ये x को हाफ पुट कर दो, मतलब ये जो x बोल दो इसको, ऑर्डर को, इसको ऐसा x ऑर्डर बोल के। ठीक है, बाकी मैथ्स है, अब आपको डेटा पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। Then sixth question is something that has come. So sixth question. Good morning. Morning to you. Why are you gay? Sixth question में it is PV is equal to nRT. उसको यूज करा जा रहा है, तो अगर dc by dt है और c को क्या लिखोगे आप, n by v, तो इसको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, एंड इसी तरीके से ये n by v को आप क्या लिख सकते हो, p by RT। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल कर इसको dp by dt कर सकते हो। ये आइडियल गैस के लिए होता है ना। ऑलराइट, 54th में 54th को दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब R इज इक्वल टू K इंटू सी रेज टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो मान लो अब ये R को हम लोग dx by dt भी बोलते हैं ना, of how the concentration is changing. So अब यहाँ पे नोटिस करो that R1 किसी C1 concentration पर रहेगा and R2 किसी C2 concentration पर रहेगा। So this is dx by dt
at some point 1, this is dx by dt at some point 2, which is divide. आपको क्या दिखेगा? dx by dt at 1 upon dx by dt at 2, ये तो कट जाएगा, c1 by c2 raised to the power of n. Now you take log and match with option C. I think C के साथ में मैच करता है, हाँ C के साथ में मैच करेगा, ठीक है. Then 59th question. नहीं यार 59 मत करवाओ यार, man. Can oh, just a second guys, sorry, that screen sharing. I'll just share the screen again, just give me 1 second. Naughty America. Nobody does it better. मेरे पास सी log रहता है. I have an entire log of who chats what and who, because the entire meeting is also getting recorded. I have the provision of recording the audio as well. So keep in mind, everything is being tracked and waiting for me to be analyzed at the end of the lecture. All right, so 59th is pretty straightforward. This is something which you should be able to get really easily. इसमें ऐसे आप r इज इक्वल टू k, अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो आप मैथमेटिकली भी जा सकते हो, अदरवाइज वो दिखने में ही समझ में आ जाता है. That this is 0.25 when they are both 1. This is 0.5 when this is 2 and this is 1. And this is again 0.25 when this is 1 and this is 2. So you divide and get x and y. ठीक है. Then question number 12. Okay, in question number 12, in a reaction, 2A goes to products, the concentration of A decreases from, ये तो कर लिया ना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, I think 12th repeat कर दिया आपने. 60, 61. स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना 60 भी. फर्स्ट ऑर्डर में कैसा रहता है, थोड़ा सा रीचेक करना है बस. ln a naught by at is equal to kt. So ln a naught minus ln at is equal to kt. ये c है, ये y है और ये x है, तो y is equal to minus kx plus c आ रहा है. तो आप कमेंट कर सकते हो स्लोप नेगेटिव होगा एंड इंटरसेप्ट कुछ पॉजिटिव होगा. ठीक है. 61 तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो काइनेटिक्स भी नहीं आएगी. मतलब A goes to 2B plus C है, तो उस केस में अब प्योर A है, ये मतलब ऐसा A 0 0 A minus x 2x x and 0 2A and A.
तो 3a 270 है एंड a प्लस 2x 176 है, मतलब ये टाइम 0 पर है, ये टाइम इन्फिनिटी पर है और ये टाइम 10 मिनट्स पर है। तो यू कैन गेट a एंड यू कैन गेट x। तो जो भी आपको पूछा है वो सब आप बता सकते हो, a माइनस एक्स। ठीक है, देन 63 is something which is based on that formula। ठीक है, ln of v infinity minus v naught upon v infinity minus vt is equal to kt। ठीक है, अब प्लीज एक चीज नोटिस करना कि ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में there were some like important aspects when you are going to solve questions with this, like एक important aspect ये होता है, you have to identify the species for which measurement is happening। For which measurement is happening। अब यहाँ पर कैसा है that the reaction was something of this nature that ester plus water was giving H plus, then acid plus alcohol। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसा है that जो बेस है वो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेस रिएक्ट्स विद दीज। अब इस केस में कैसा है कि बोला है कि H प्लस तो प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में ये आपका V नॉट जीरो रहेगा। V नॉट जीरो क्यों रहेगा, like let me put it in this manner, V नॉट इज जीरो। why? because कोई कैटलिस्ट नहीं है एज वेल एज कोई एसिड भी नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला सिंपली अब बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, देन 64th क्वेश्चन में अब वापस से यही फॉर्मूला यूज करना है, ln r infinity माइनस r नॉट अपॉन r infinity माइनस rt इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये ऑप्टिकल रोटेशन वाला फॉर्मूला रहेगा। अब 50% कन्वर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 50% इन्वर्जन का मतलब ये हो गया। अब उसमें ऐसा दिया हुआ है ना कि ये जो r infinity माइनस r नॉट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू a and r infinity minus rt is proportional to a minus x। इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये r infinity minus r नॉट अपॉन r infinity minus rt is equal to a upon a minus x हो जाएगा। and this thing will be what, this thing will be equal to 2 if it is 50% conversion। तो इस चीज को बस अब आप फॉर्मूला में डाल दो, मतलब इस चीज को वैसे r infinity माइनस r नॉट अपॉन r infinity माइनस rt करके लिखो, तो इससे क्या मिल जाएगा, that r infinity is equal to 2rt माइनस r नॉट। ठीक है, ये ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, बीच में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना, लाइक एज आई सेड अगेन, मतलब चैट मेरे को दिख नहीं रही है इंटरमिटेंटली, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। All right, so let's quickly move to 67। 67 is a good question। मतलब थोड़ा सा इसमें आप नोटिस करोगे तो मतलब हो जाता है, it does not take much of your time। if you will notice इसमें आपको एलिमेंट्री बोला है,
एलिमेंट्री प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट इज ऑर्डर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट आई कैन राइट एज k into partial pressure of A raised to the power of 1 into partial pressure of B raised to the power of 2। ठीक है, अब कैसा है दैट इसमें बोला जा रहा है दैट इनिशियली टाइम 0 पर this is 0.6, this is 0.8 and then t टाइम पर, ठीक है, this becomes 0.2। अगर ये 0.2 है तो ये बाकी सब क्या क्या होंगे, कौन बताएगा? Anyone? जीरो 0.4। हाँ, अनम्यूट करके बोलो आराम से। क्वेश्चन रिपीट करो ना। आ रहे हैं, सही सही जवाब आ रहे हैं सबके। सो अगर ये 0.4 हाँ, ये 0.4, ये भी 0.4 और ये 0.2, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब आप देखोगे तो आर नॉट विल बी इक्वल टू के इंटू 0.6 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2 एंड आर टी विल बी इक्वल टू के इंटू ये 0.4 की पावर 1 एंड 0.4 की पावर 2। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इनफैक्ट आर टी बाय आर नॉट पूछा है, तो आर टी ऊपर रखना, आर नॉट नीचे रखना, ठीक है। All right, let's move on to the next question, 72। 72 में 72 आसान है। 72 में there is this important property, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, don't need the long AT, BT and CT formula, ठीक है, वो फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि A नॉट इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT, ठीक है, एक ये इक्वेशन याद रखनी है। वैसे तो इसमें ये वाली भी काम नहीं आएगी, और दूसरा ये याद रखना है दैट BT अपॉन CT इज इक्वल टू K1 बाय K2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई होप एवरीवन इज एबल टू recollect this from the derivation that was done in the video lectures, ठीक है। तो अब अगर इनका रेशियो मिल जाएगा और दोनों का सम 100% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है ना बस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन 75th में ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है सोचने में एक बार के लिए। इसमें कैसा है, बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेप स्लोअर स्टेप कौन सा है, कोई बताएगा? फर्स्ट वन। व्हाई इज दैट सो? सर रेट के कम है उसका, ये छोटा है। K1 इज लेस देन K2, ठीक है ना, K छोटा है तो उसका स्पीड कम है। तो अब हमने ये देखा है ना दैट दिस लोअर स्टेप इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मेरे को ओवरऑल K कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। वैसे तो इसमें और क्योंकि डेटा नहीं है, अदरवाइज यू रिमेम्बर तो हमारे पास पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म का हम लोग वर्किंग करते हैं, बट इसमें क्योंकि और डेटा नहीं है, तो व्हाट वी हैव डन इज जस्ट सिंपली अप्रोक्सीमेटेड इट क्लोज इनफ टू
write about the smaller value. ठीक है. Then 84th question. इसमें K stands for Kelvin ना, वो कोई रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है. तो मतलब वो जो K राइट हैंड साइड वाला है, राइट साइड वाला जो K है, ठीक है, तो ये log K इज इक्वल टू 5 माइनस 2000 अपॉन टी. ठीक है, और ये कैसे लिखते हैं, log a माइनस ई ए बाय आर टी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, log a इज 5 एंड ई ए बाय आर टी इज 2000. ठीक है, तो अब जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हो. So, but the units are given. As in The unit was K in the equation. हाँ हाँ हाँ, वो यूनिट था, वो K केल्विन है. वो K कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट नहीं है. अच्छा, okay. ठीक है. Then 91st question. 91st question में वापस से यही यूज करना है आपको बाबा. The same thing again. अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, log K is equal to minus E A upon 2.303 RT plus log A upon, और not plus upon रहेगा, बस इतना रहेगा. So if you look at this, so this is the slope and this is the intercept. निकालो. Okay, someone has asked 50th question as well. 50 पीछे जाना पड़ रहा है वापस. अभी a goes to b है, a minus x and x is directly proportional to t, x is equal to kt, or you can say dx by dt is equal to k. तो ये जीरो ऑर्डर आता है क्या समझ में, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, that the concentration of product is directly proportional to temperature. ठीक है. Then 71. The rate of reaction is equal to K1 plus K2 हो जाएगा ना, दोनों से कंज्यूम ही हो रहा है. So X जो है is getting consumed in both reactions. ठीक है, एंड उसमें मेंशन नहीं करा हुआ है, बट ये मेंशन करना चाहिए था कि फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा. So dx dx by dt is equal to minus of k1 times x and minus of k2 times x. ठीक है. Then 94, 96, 97, 99 एक साथ सब क्वेश्चंस इसी में. ठीक है, तो पहले एक बार 95 देख लेते हैं. आई थिंक ये कॉन्सेप्चुअली एक बार समझना जरूरी है आप लोगों के लिए. वैसे तो वीडियो लेक्चर्स में समझाया गया है, बट आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक रिकैप ऑफ इट एज वेल. ध्यान से नोटिस करना. इसमें
कुछ ऐसा 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 बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं अपन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा while we are going from 1 to the intermediate, एंड ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा while you are going from intermediate to the product। ये समझ में आया? तो ये मेरा, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता पड़ेगा ये मेरा फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या है? ये है a plus bc is giving ac plus b, एंड सेकेंड स्टेप क्या है? AC plus D is giving A plus CD, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। वंस यू ऐड देम तो ये क्या बचेगा? A plus BC plus AC plus D is giving AC plus B plus A plus CD, ठीक है। अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो इंटरमीडिएट है। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो प्रोडक्ट्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे रहेगा वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हो गए एंड ये प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ ठीक है। सर ए कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? कौन सा के? सर ए। अच्छा, ओ माय बैड, सॉरी, ए भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, आई डिडंट नोटिस दैट। तो ये ए भी कैंसिल हो रहा है, तो ए भी इंटरमीडिएट हो गया आपका, फिर ए आपका रिएक्टेंट नहीं बचा, ए भी आपका इंटरमीडिएट ही हो गया, ठीक है। यू कैन राइट दैट A and AC intermediates, ठीक है। इनफैक्ट A एक्चुअली पता है कैटलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। A कैन बी कैटलिस्ट ऑल्सो, कि रीजेनरेट हो गया, यस सर। ठीक है। ऑल राइट, सो 96th क्वेश्चन में कैसा रहेगा? 96th में, ठीक है, इफ यू विल नोटिस जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरे स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है, तो EA1 is more than EA2, so this is slower, so this is the rate determining step, ठीक है। देन 94 भी एक बार बता देता हूं मैं, 94th में कैसा रहेगा? 94th में सी आपसे पूछा जा रहा है कि RDS कौन सा रहेगा। अब आप इसमें अजम्पशन ले लो, ठीक है। वापस से नोटिस करना कि NO plus Br2 is giving NOBr and NOBr2, और in fact ये NOBr2 ही है, plus NO is giving 2NOBr, ठीक है।
इनफैक्ट इसको रिवर्सिबल नहीं बताया है, सेकेंड वाला इज फॉरवर्ड ओनली। अब इसमें बोला जा रहा है कि R इज इक्वल टू के NO की पावर 2 एंड Br2 की पावर 1, ठीक है, ये गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप can't be RDS. Why? Because then order with respect to NO should be 1, ठीक है। तो अब इसका मतलब एलिमिनेशन से सेकेंड स्टेप ही RDS है, and you can also then use the RDS approximation to get the same rate का expression, ठीक है। ऑल राइट, इसी तरीके से आप 98 99 भी कर सकते हो। So can you show the previous question? कौन सा वाला? ये वाला 96? हाँ, कॉपी कर। हम्म, कॉपी करना था copy। मैं ये भेज दूंगा, आई विल शेयर दिस थिंग विद यू। अच्छा फिर ठीक। तो बात क्यों जा रहे हो? कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? तुम्हारी आवाज नहीं आई। क्या कर नहीं सकता? आप बाहर क्यों जा रहे हो? पर नहीं पढ़ा है क्या? सर RDS क्या है, एक बार बता सकते हैं प्लीज? सॉरी, RDS क्या है सर, एक बार बता सकते हैं प्लीज? RDS ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का अप्रोक्सीमेशन है। तो चलो ठीक है, मैं एक बार ये 99th क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अभी तुम देखो 99th क्वेश्चन में O3 गिव्स O2 प्लस O, ये स्टेप 1 है, ठीक है। एंड देन स्टेप 2 क्या दिया हुआ है, दैट O प्लस O3 इज गिविंग 2O2, ठीक है। इसको फास्ट बोला है, इसको स्लो बोला है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2O3 इज गिविंग 3O2, ठीक है। O कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो इससे क्या समझ में आया, O3 इज रिएक्टेंट, O2 इज प्रोडक्ट एंड O इज इंटरमीडिएट, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। तो इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है सर? सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेप तो एलिमेंट्री होता है, यस सर। तो मैं उसका ऑर्डर तो लिख सकता हूँ ना कि वो O की पावर 1 एंड O3 की पावर 1 रहेगा। दिख रहा है ये? यस सर। है ना? यस सर। ओके, सो नाउ बट अब आई कांट रिपोर्ट दिस एज फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन कांट हैव एन इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट तो क्या है, हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना है, वो तो बनता है और खत्म होता है। हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर द रियल थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम आउट। यस सर। तो अब हम लोग यूज करते हैं RDS अप्रोक्सीमेशन टू सब्स्टिट्यूट concentration of O, we use RDS approximation। ये approximation क्या कहता है, the equilibrium which are rapid are attained, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला जो रिएक्शन है फास्ट वाला, ठीक है, ये फास्ट वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं बड़ा तो वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं आपसे,
मतलब एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, ये k क्या हो जाएगा, O2 इंटू O अपॉन O3, ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है, नाउ यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दो यूजिंग दिस, O क्या दिख रहा है, k इंटू O3 अपॉन O2, तो अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे r के एक्सप्रेशन में, तो r क्या हो जाएगा, k, ये जो स्मॉल k था मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल K इंटू O3 बाय O2 इंटू एक और O3 था वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू K इंटू O3 की पावर 2 अपॉन O2 की पावर 1, so it is second order with respect to O3 and first in fact -1 order with respect to O2, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, so that being said we have spent a lot of time on FBS, oh sorry FBO. Sir, हाँ बोलो. can you please tell the definition of activated complex? See, activated complex is a state which comes during the process of bond formation and bond breaking. मतलब आप ऐसे मान के चलो कि you know there is this, let's say for an example A2 plus B2 is giving 2AB kind of reaction, ठीक है, तो ये एक A का मॉलिक्यूल है, ये B का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी दूर दूर है, बट जब ये आपस में पास आएंगे तो बीच में अब क्या हो रहा है कि इनके ये बॉन्ड्स तो फॉर्म होने हैं, ठीक है, एंड ये बॉन्ड्स ब्रेक होने हैं, तो जो ये मोमेंट रहेगा जहां पर लाइक दीज एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, where bond breaking and bond forming process is happening together, it is going through this unstable transition state जिसको हम लोग बोलते हैं activated complex. Okay, sir. Thank you. ठीक है, तो 96 वाला नहीं समझ में आया मतलब. 96th वाला स्लो स्टेप पूछा ना आपसे, तो स्लो स्टेप में आप क्या करोगे, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो देखोगे, ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे देखते हैं, ओके हाँ ठीक है, 2 is greater than 4 then. समझ गए, हाँ ठीक है. ये E1 है ना और ये E2 है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, नाउ before I proceed with the FBS also, doing the FBS discussion, थोड़ा बहुत तुम लोग भी बोलो if you have any conceptual doubts or something. See, this is the challenge, मतलब आप लोग बीच में ऐसे doubts update करोगे ना तो it is not something which will happen, मतलब ये discussion structured manner में हो पाएगा तभी it will be beneficial to each and every one of you. मतलब इसीलिए आपके साथ में एक्सेल शीट शेयर करी है that आप प्लीज टाइम निकाल के स्ट्रक्चर्ड मैनर में पहले सब डाल के असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस रखो ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए, ठीक है. अब इस तरीके से बीच बीच में आप डाउट्स बताओगे, मैं डाउट डिस्कस करूंगा, आप नोटिस कर रहे हो कि मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल गया पूरे लेक्चर को और ले देकर अभी FBO के डाउट डिस्कस हो पाए हैं, ठीक है. ऑल्दो स्टार्टिंग का 10-15 मिनट मैंने बहुत सारा ज्ञान बांटा है, बट इवन फॉर दैट मैटर इट इज नॉट समथिंग जहां पर द एंटायर लेक्चर just goes and keep on discussing doubts and doubts. तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलो. सर सो देन वन सजेशन, आप एक्सेल शीट में एक लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स लिख डालो
और फिर बाद में हम लोग सब लोग सिर्फ yes no करेंगे, अगर डाउट होगा तो अपडेट कर देंगे, और फिर आपको नंबर वाइज सब स्ट्रक्चर में आपको डाउट्स भी मिल जाएंगे एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो काइंड ऑफ क्योंकि क्या है ना, मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली व्यूइंग दिस ऑन देयर मोबाइल। ठीक है, तो अगर वो बहुत सारी चीज़ मतलब ऐसे लंबा पूरा लिस्ट बनता जाता है ना, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्क्रॉल एंड व्यू। No that sir, is why I'm not saying like that. You just write the question numbers like in FBO there's 1 to 101. So you just write 1 to 101. If the students have doubts in question number 153 and suppose let's say 60, so then they'll type yes in 60, 1 and 53. They'll just type yes, and then you can get a structured manner, and rest all will be no. And if two students have doubt in 60, then one student has typed it in the 60th question, so then they don't need to type it again. सी वापस से मेरे लिए प्रैक्टिकल कंसर्न ये है कि मैं हर बार क्या नई गूगल शीट नहीं बनाऊंगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है गूगल शीट का, उस शीट को ही मुझे रीयूज करना है। ठीक है, तो अब उसमें कैसा है कि इफ आई मेक दैट शीट बिग नो, तो फिर आप ढूंढने बैठ जाओगे आज से दूसरे तीसरे लेक्चर के बाद में कि अभी नए डाउट्स कहाँ पर है। तो अभी जैसे आपने ऊपर ऊपर एक्सेस किया तो केमिकल काइनेटिक्स के डाउट्स दिखे, छोटे से सेक्शन में मोबाइल में देखे, आराम से लिख दिए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब जब हम नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक वगैरह के डाउट डिस्कस करेंगे तो मैं ये क्या होगा, काइनेटिक्स के डाउट को नीचे खिसका दूंगा एंड ऊपर रोज इंसर्ट कर दूंगा, और उसमें आप लोग अपने डाउट्स ऐड कर लोगे। इफ आई मेक दैट थिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्पेस टेकिंग ना, तो वो काइंड ऑफ messes up the entire sheet. But I understand your suggestion is nice. It's not bad. Okay sir. ठीक है, और कोई conceptual doubt है before I start working with the FBS section? सर हाँ बोलो। रेट के फॉर्मूला में कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन आता है? हाँ आ सकता है ना, जैसे वो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का था या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था, तो उसमें H+ आता है ना। पर सर H+ का ओके 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 मैं समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर डाउट? What is the difference between intermediate and transition state? Intermediate is actually a species that is getting formed after the step has occurred. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, ये स्टेप ये रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ टेक दिस अगेन। ये रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ और फिर ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये जो बना है बीच में, ये क्या है, वापस से कंज्यूम हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो इट वॉज नाइदर देयर इन द स्टार्ट एंड इट इज नाइदर देयर इन द एंड, इट वॉज समथिंग इंटरमीडिएट दैट गॉट फॉर्म्ड एंड गॉट कंज्यूम्ड। तो ये इंटरमीडिएट है एंड इट इज काइंड ऑफ स्टेबल। मतलब आप देख रहे हो ये ऐसे मिनिमा पे आ रहा है। तो इंटरमीडिएट्स क्या है, इंटरमीडिएट्स आइसोलेट भी करे जाते हैं। मतलब अगर स्पीड स्लो है रिएक्शन की, तो देयर आर ways in which intermediates practically can be isolated, can be understood कि हाँ ये एक अलग से species exist कर रही है रिएक्शन में। ट्रांजिशन स्टेट के साथ में कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट आर हाईली अनस्टेबल and as a result they are not something which are going to be you know coming or can be isolated. ठीक है, Okay, sir. all right, then any other doubt? सर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त यूनिट्स क्या होने चाहिए वो आप एक बार बता सकते हैं प्लीज?
रेट का तो रेट इज जस्ट ऐसा, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो ये तो मोल पर यूनिट टाइम हो जाएगा या मोलार पर यूनिट टाइम। जो यूनिट्स चेंज होते हैं वो रेट कांस्टेंट के होते हैं। यस सर। ये मोलार पर यूनिट टाइम है और ये यहाँ पर मोलार रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर है, तो अब ऑर्डर चेंज होता जाएगा तो के का भी चेंज होता जाएगा वैल्यू। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। देन how does the rate depend on temperature? Now that is also something which is pretty easy to understand because ये पूरा सेक्शन है टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पे हमको के रेट कांस्टेंट के अंदर डिपेंडेंस देखना है। रेट कांस्टेंट के अंदर डिपेंडेंस कैसा रहेगा, जो के है उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट आर एबल टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड एनर्जी वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अभी भले ही वो हम फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे हो कि बैकवर्ड के बारे में बात कर रहे हो, दोनों के केस में एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है दैट बिकम्स इजियर टू क्लाइंब। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, बी इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। And this is something which must be very clearly differentiated, differentiated as compared to equilibrium constant, क्योंकि equilibrium constant हम लोगों ने समझा था कि अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। ठीक है, बट रेट कांस्टेंट दे ऑलवेज इंक्रीज विद टेम्परेचर, दे डोंट डिपेंड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये तो इसी ग्राफ पे समझ लो ना। मान लो ये फर्स्ट स्टेप जो है अभी रिवर्सिबल होता तो ये यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, माय बैड, यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और ये यहाँ पे नोटिस करो, अगर ये हम लोग पीछे आ रहे होते, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस प्रोडक्ट, ये आपका ये बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर अभी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के साथ में भी डील नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? It is just the energy that is required to overcome the transition state. Sir, हाँ बोलो। for a zero order reaction, when the rate becomes independent of the concentration of the reactant, then how does it remain constant over increasing time? Because concentration to decrease हो रहा है ना reactant का. But that is what the rate law says, no, that concentration पे depend ही नहीं कर रहा है. The rate of reaction is not dependent on concentration. जैसे let me try to give an example कि मतलब आप इस तरीके से, जैसे ये वाला एक फोटोकेमिकल रिएक्शन काफी कॉमन एग्जांपल दिया जाता है that H2 plus I2 is giving 2HI. ठीक है, एंड ये सब गैस स्टेज में हो रहा है. ठीक है, सो इसमें अब it is only the intensity of light which becomes a factor. मतलब see ये सब चीजें कैसे experimentally understood होती हैं. जैसा जो भी रिएक्शन है उसका जब भी आपको ऑर्डर निकालना होता है ना, इट ऑलवेज कम्स एक्सपेरिमेंटली. अभी जैसे लेट मी take 2-3 examples to help you understand this thing better. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है
N2O5 is giving 2NO2 plus O2. ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली पता पड़ा कि अगर हम N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, एंड NO2 एंड O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो एक्सपेरिमेंटली ये हमारा रेट लॉ आ गया और ये ऑर्डर 1 पता पड़ गया. वैसे ही से ये वाला जो रिएक्शन था H2 plus I2 is giving 2HI. इसमें what we understood is rate of reaction is not even depending on H2 का concentration and not even depending on I2 का concentration. In fact, it is depending only on the incident of the number of photons which are striking. तो ये कैसा हो गया, H2 के रेस्पेक्ट में 0 एंड I2 के रेस्पेक्ट में भी 0. सिर्फ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो फोटॉन्स क्या है, इसके अंदर K के अंदर कैप्चर हो रहे हैं. ठीक है, वो K के अंदर कैप्चर हो रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन कैसा है, 0 ऑर्डर, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स या कैटलिस्ट पे डिपेंडेंस है कॉन्सेंट्रेशन की, वो तो 0 है. अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल देखा ओजोन वाला, जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो इसका रेट लॉ कुछ ऐसा आ रहा था. ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटली आता है. तो इसमें पता पड़ा है कि ऑक्सीजन गैस का अगर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो रेट कम हो जाता है. तो एक्सपेरिमेंटली पहले ऑर्डर समझा जाता है, एंड देन उसके बाद वी टेक अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स डेवलपिंग अ मैकेनिज्म. और फिर उसमें भी फर्दर वैलिडेशन आता है इफ वी आर एबल टू आइसोलेट इंटरमीडिएट्स. किसी ने कोई मैकेनिज्म प्रपोज करा, अब उस प्रपोज मैकेनिज्म का एक तो ये है कि भाई ये ऑर्डर से मैच कर रहा है, बट देन पीपल विल डाउट एंड से कि भाई तुमने तो पहले ऑर्डर निकाला और उससे बैक कैलकुलेट करते हुए मैकेनिज्म बताया, इसके पीछे और कोई एविडेंस है क्या. तो फिर देन पीपल आर एबल टू आइसोलेट इंटरमीडिएट्स and prove that this intermediate is something because this should be the mechanism. So that is how it gets validated. Okay sir. समझ में आया? हाँ, thank you. ठीक है. ओहो, वापस से आप क्लोज हो गया. Just a second guys, again let me share the screen. Right. और कुछ? So could you give any other examples of zero order reactions? Yeah, many examples are there. In fact, generally speaking, other than speaking, photochemical. हाँ, मतलब decomposition of gases over metal surfaces at high concentration and high temperatures are found to be zero order. Okay, sir. Thank you. ठीक है. अच्छा, someone has asked me also molecularity deciding step in a multi-step mechanism. Please read NCERT. There is some gadbad concept which is propagating through and through. For a complex reaction, multi-step reaction जो होता है उसके लिए molecularity define नहीं होती है. Molecularity is only defined for an elementary reaction or an elementary step. ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप है, तो हर स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी कुछ ना कुछ होगी क्योंकि वो एलिमेंट्री है नेचर में. बट ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है. दिस इज क्लियरली आर्टिकुलेटेड इन एनसीईआरटी. पता नहीं है कहाँ से कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट हो रखी है, दैट लाइक कई लोग ऐसा अजम्पशन मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें जो आरडीएस है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है उसको दे काइंड ऑफ टेक टू बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. वैसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. ऑल राइट, एनी अदर? सर, रिएक्शन जीरो ऑर्डर है या नहीं है, ये रिएक्शन देख के हम पता नहीं कर सकते हैं. तो
क्या याद रखने होंगे रिएक्शंस जो जीरो ऑर्डर हैं? नहीं नहीं, बस ये एक जनरल आइडिया रख लो कि जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर टिपिकली जीरो ऑर्डर एंड gases का decomposition at high concentration or you can say high pressure high temperature are typically zero order. अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर याद नहीं रखना है. आई वुड, अगर आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है ना, मतलब एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल चैप्टर्स, अगर एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो वो एग्जाम्पल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. यस सर. यस सर, थैंक यू. ठीक है. कैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते ना, तो हम लोग यही अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है वो खत्म ही हो गया है. ठीक है. सो वैसे तो हमारे पास अभी 5-10 मिनट बचे हैं, बट आई डोंट नो इफ दैट इज सफिशिएंट टू डिस्कस द एफडीएस सेक्शन एज वेल. ठीक है. सो what as I said previously, मतलब I'll share the in common doubts के pre-recorded videos with you guys so that you can go through them again अच्छे से. एंड अभी तो मैं मेहनत करूंगा सॉर्ट करके करने की, बट नेक्स्ट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट द थिंग्स इन असेंडिंग मैनर and follow these guidelines. Apart from this, any other question which is coming? ठीक है. So okay, there is some question that came. Okay, no, there aren't any. So as a recap, मतलब please take care of these guidelines and next class वैसे तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस से कम्युनिकेट करूंगा. आप लोग संडे का टेस्ट दो. अभी शेड्यूल आएगा नेक्स्ट वीक का, तो फिर वी विल हैव अदर सेशंस एंड आई होप आप लोग वॉल्यूमेट्रिक पैरेलली कर रहे हो. ठीक है. वॉल्यूमेट्रिक में हम लोगों ने आधे से ज्यादा कंटेंट तो ऑलरेडी कवर कर ही लिया था. जो आखिरी का टाइट्रेशन एंड ऑल का पार्ट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज यू गाइस मस्ट बी प्रैक्टिसिंग. सो आई थिंक आप लोगों को होमवर्क के लिए मैंने उसमें HA2 एंड HA3 करने के लिए बोला है, सॉरी HA3 एंड HA4 करने के लिए बोला है, इफ आई रिमेम्बर. तो वो आप लोग तैयार करो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर आपके सिलेक्टिवली कुछ काइनेटिक्स के डाउट्स बचेंगे तो वो डिस्कस करेंगे. अदरवाइज द फोकस वुड बी टू कंप्लीट वॉल्यूमेट्रिक जो भी रिमेनिंग पार्ट है इन 1 or 2 लेक्चर. मतलब अगर नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर लगे अपने, तो 2 लेक्चर में वी विल एम टुवर्ड्स कंप्लीटिंग वॉल्यूमेट्रिक एज वेल. ठीक है. सो मूव ऑन टू ऐसा है उधर तुम्हारे इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इधर भी मुंबई में. There is one more doubt which has come from to explain that formula. जो हम लोग P infinity वाला formula use करते हैं ना, उसको लेकर you are asking. Now the thing is that वो formula अभी देखो, उसका derivation is something which comes from solving the fundamental तरीके से itself. The fact that the property is proportional to concentration, वहीं से उसका डेरिवेशन आता है. जैसे लेट मी से कोई एक एग्जांपल मैं आपके साथ में अगर ऐसे डिस्कस करना चाहूँ, सी A goes to B plus C. ठीक है. सब गैसेस हैं. ठीक है. एंड टोटल प्रेशर मेजर हो रहा है. तो टाइम 0 पर ये A है, ये A माइनस एक्स एन एक्स है, एंड ये A और A हो जाएगा इन्फिनिटी पर. ठीक है. सो अब यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो दैट T0 इज प्रोपोर्शनल टू A.
Pt is proportional to a minus x plus x, and p infinity is proportional to 2a, right? So the thing is that if you do this, you will end up on a minus ax, and ये I think मैंने अपने lectures में बताया ही है कि even if the proportionality constants are not the same, you will still end up with this because the parameter is directly proportional. अगर ये directly proportionality नहीं होगा ना, तो फिर ये relationship problematic हो जाता है, then it becomes something difficult. ठीक है? So I guess let's close the lecture for the day. I'll be sharing this FBO का sheet over the group, what we have done or discussed today. And apart from that, जो बचे हुए doubts हैं आपके, I will try to pre-record and share with them, share with you. And out of them, मेरे discussion पे जो मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छे questions हैं, which must be discussed, so that I can inform you or tell you about, you know, the kind of careless mistakes that you make, or if there is any alternate way or trick to be solved with, तो उसका मैं एक live session में discussion ज़रूर करना चाहूँगा. ठीक है? चलो, thank you guys, and we'll meet until the new schedule comes in. No!